First of all, I welcome all the students and the participants who are attending this live lecture. Today in this live lecture, we shall discuss some important theorems on closed sets. In this section, we shall discuss some important theorems on closed sets. See this? Actually, in the last lecture, we have defined the definition of the closed set, closure of set. Today we shall also discuss the definition of the dense set, and we shall start some important theorems. You know that definition of a closed set is depend on the adherent of a points. See this, a real number p is said to be adherent point of a set S, which is a subset of R, if every neighborhood of a P contains at least one point of S. In that adherent point, see this, S is a subset of R, P is any point, then every neighborhood of a P, what is that neighborhood here? P plus epsilon to P minus epsilon, ये देखो ये neighborhood है. Every neighborhood of a P contains at least one point, means intersection of this open interval and S का नॉन एम्प्टी होना चाहिए ॲटलिस्ट वन पॉईंट. जर पीला एक्सक्लूड केलं, पीला जर सोडून दिलं तर तो लिमिट पॉईंट्स होतात, आणि पी इन्क्लुडिंग असेल आणि बाकीचे जर पॉईंट्स नसतील तर तो आयसोलेटेड पॉईंट होतात. ओके, कंटेन्स पी ओनली पॉईंट पी, देन इट इज कॉल्ड आयसोलेटेड. अदर दॅन पी मीन्स लिमिट पॉईंट्स. क्लोजर ऑफ द सेट ऑफ ऑल अडेरंट पॉईंट्स इज कॉल्ड एज अ क्लोजर ऑफ द सेट. सर्व अडेरंट पॉईंटचा सेट म्हणजे क्लोजर असतो. सेट ऑफ अडेरंट पॉईंट्स ऑफ एस इज ऑल्सो क्लोजर ऑफ सेट. इट इज डिनोटेड बाय एस बार, and which is defined as S bar is equals to S union S dash. We have seen this. Also closed set, this is the definition regarding the closed set. A set is said to be closed if each of its limit point is a member of the set. अगर उसी सेट में सभी लिमिट्स पॉइंट आते हैं, अगर किसी भी सेट में उसके सभी लिमिट पॉइंट्स आते हैं तो उस सेट को हम क्लोज्ड सेट कहते हैं. सेकंड, a set S is subset of R is said to be closed set if S contains all of its limit points. If S contains all of its limit point. Next, third, a set S is said to be closed if S dash is subset of S, or we can say that S bar is subset of S. Okay. Now we shall discuss the dense set. ज्यांना क्लोज्ड सेट्सचा डेफिनेशन कन्सेप्ट डीप मध्ये माहिती करून घ्यायचे आहेत त्यांनी प्रिव्हियस व्हिडिओज लेक्चर्स तुम्ही व्यवस्थित पहा. नाउ वी शॅल डिस्कस द डेन्स सेट डेफिनेशन. राइट डाउन डेन्स सेट की डेफिनेशन. अ सबसेट ए of reals capital R is said to be dense, or it is also called as dense in R. Or it is called as everywhere dense if every point of R is a point of A, or limit point of A. Okay, so here this is the first definition. We can write again second definition.
a set capital A is said to be dense in itself. ये second definition है, dense in itself is said to be dense in itself. Dense in itself if every point of A is a limit point of A, that is A is subset of A dash. Okay. Next we can write a nowhere dense. This is a first definition, dense set. This is a dense in itself. अभी हम थर्ड डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं. डेफिनेशन थर्ड, nowhere dense. A set capital A is said to be nowhere dense. See this, nowhere dense. Nowhere dense or non dense, काही म्हणा चालतं, relative to R if no neighborhood in R is contained in the closure of A, or we can write this as or a set A is called nowhere dense. Nowhere dense if the complement of A closure is dense in R. A closure is dense in R. See this, these are the three different definitions regarding this. Again I shall revise this. A subset, dense का मतलब क्या होता है सबसे पहले मैं बताता हूं. dense यानी कि घना. घना यानी खूप क्लोज असलेले पॉइंट्स, एकमेकांना चिटकून असलेले पॉइंट्स, दॅट इज कॉल्ड एज अ डेन्स. डेन्स का शब्द, डेन्सचा शब्दशः अर्थ असतो घट्ट. पॉइंट जे असतात त्या सेटमध्ये एकमेकांना घट्ट असतात. सपोज दीज आर द फिंगर्स. दीज फिंगर्स आर डेन्स. इफ वी सी दिस, नाउ दीज फिंगर्स आर नॉट इन अ डेन्स. डेन्स म्हणजे घने नाही. देर इज अ गॅप बिटवीन टू फिंगर्स. सेम द पॉइंट्स आर सेड टू बी, अ सेट कैपिटल ए इज सेड टू बी अ डेन्स और एव्हरीवेअर डेन्स इफ पॉइंट ऑफ आर, ए मध्ये सर्वच्या सर्व आर चे पॉइंट्स असतील तर, ए मध्ये सर्वच्या सर्व आर चे पॉइंट्स असतील तर. म्हणजे पहा, दिस इज अ डेफिनेशन और डायग्राम फॉर द फर्स्ट. याला डायग्राम अशी काढू शकतो. सपोज दिस इज ए, दिस इज अ सेट ऑफ आर. आर चे सर्वच पॉइंट जर ए मध्ये आले असतील तर ए हा सेट डेन्स होतो, कारण आर मध्ये देर इज नो एनी गॅप इन बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स. सो आर चे जर पॉइंट्स ए मध्ये असतील तर ए इज सेट टू बी डेन्स इन आर. आता डेन्स इट सेल्फ काय पहा, सेकंड डेफिनेशन डेन्स इट सेल्फ. ही डायग्राम काढा वाटलं तर याच्यासाठी. ही सेकंड डेफिनेशन, अ सेट ए इज सेड टू बी डेन्स इन इट सेल्फ
if every point of A is a limit point of A, अगर ये सेट में उसके सभी लिमिट्स पॉइंट आते हैं तो उस सेट को भी हम डेंस इन इटसेल्फ कहते हैं. ये सेकंड डेफिनेशन है, डेंस इन इटसेल्फ. थर्ड डेफिनेशन, nowhere dense. Nowhere dense means there is a not limit point, including the set which does not include a limit point. A set a set capital A is said to be nowhere dense relative to R if no neighborhood of R is contained in closure of A. R चा जो नेबरहुड आहे क्लोजर ऑफ A मध्ये कंटेंट नसतो. So this is called as a dense in R. Now here we shall discuss this. अगर a set A is said to be nowhere dense if the complement of A bar, closure of A, is dense in R. Okay, तो यहाँ पे ये डेफिनेशन डेंस के हम नोट रिप्रेजेंट करते हैं, नोट और रिमार्क. You can write note or remarks. See this. Number 1, if capital A is an interval or contained in interval, then capital A is not nowhere dense. अगर इंटरवल का सेट है, अगर इंटरवल में कंटेंट होने वाला सेट है तो नोवेयर डेंस नहीं होता है. ओके, सी दिस. सेकंड, if A is equals to 1, 1/2, 1/3 dot 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 1 by n dot 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 means 1 upon n. As n tends to infinity, 1 upon n tends to 0. Then इसका लिमिट पॉइंट क्या होता है? लिमिट पॉइंट ऑफ A dash is equals to 0. This limit point zero is not in capital A, so A is not dense in itself. लिमिट पॉइंट इंक्लूड होता है तो डेंस इन इटसेल्फ होता है, लेकिन ये सेट ये इज इक्वल टू 1 अपॉन n. 1 अपॉन n यानी 1, 1/2, 1/3 डॉट डॉट डॉट. इसका लिमिट पॉइंट होता है 0. 0 इस सेट में नहीं आता, इसलिए उसको हम नॉट इन इटसेल्फ कहते हैं. सेकंड, थर्ड, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स Q ऑफ रैशनल्स is dense in itself, dense in itself, but not closed. म्हणजे रॅशनल नंबरचा सेट आहे, डेन्स आहे, त्याचे लिमिट पॉइंट रॅशनल मध्येच असतात. इन सो इट कॅन बी सेड टू बी अ डेन्स इन इटसेल्फ, बट क्लोज्ड नसतो तो. सेकंड, फोर्थ, a finite set is closed but not dense itself. A finite set closed itself but not dense in itself.
समझो ये इज इक्वल्स टू कंसिडर एज अ फाइनाइट सेट 1, 2, 3, 4। अगर ये को हमने वी हैव प्रूव्ड दैट ये इज अ फाइनाइट सेट विथ इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है, वी हैव सीन। सो दिस इज कॉल्ड एज अ क्लोज्ड सेट। लेकिन ये डेंस नहीं होता इटसेल्फ, बिकॉज इसके अंदर वाले 1 एंड 2 के वाले पॉइंट्स 2 एंड 3 के बीच में वाले पॉइंट्स इस सेट में नहीं आते हैं। इस बीच वाले पॉइंट्स रियल जो नंबर्स होते हैं इस सेट में इंक्लूड नहीं होते। सो वी कांट से दैट दिस इज अ नॉट डेंस इन सेल्फ। यहां पे हम कह सकते हैं दिस इज नॉट अ डेंस इन सेल्फ। फिफ्थ, नेक्स्ट 5, see this, the set of real numbers is dense in itself and closed. सेट ऑफ रियल नंबर्स तो ॲक्च्युअली क्लोज पण असतो आणि ओपन पण असतो, पण यात सर्वच्या सर्व पॉइंट्स या सेटमध्ये येतात. 1, 2 अगेन इंक्लूडेड ऑल द पॉइंट्स 3, ये सभी पॉइंट्स आते हैं. सो इट इज अ डेंस इट सेल्फ. नेक्स्ट 6, अ सेट. हाँ चला स्टूडेंट्स, अ सेट of x such that a is less than or equals to x is less than or equals to b is a perfect set. We also define this. हे आपण पाहिलेलं आहे. सेट ऑफ रियल नंबर सुद्धा परफेक्ट असतो. 7, the set of rational that is Q and a set of irrationals are dense in R. Okay, then write down 8, the empty set. हाँ एम्प्टी सेट. चलो स्टूडेंट्स बताइए एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? एम्प्टी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम्प्टी सेट, यू टेल मी. द एम्प्टी सेट is perfect. empty set perfect होता है. ओके, so we shall discuss the next concept, that is important theorems on closed sets. अभी हमें closed sets के important theorems discuss करना है. so write down theorem first. See this theorem first. A set is closed. ओके, मोहित गायकवाड, इमदे, ऋतुजा मद्रेवार, प्रतीक्षा शिंदे, डेफिनेशन फॉलो करा सर्व. A set is closed if and only if its complement is open. See this. This is the statement of the theorem. This is a very important theorem. Actually, we have seen that. डेंस सेट वेरी इजी है. डेंस सेट की डेफिनेशन आप याद रखिए. अगर सेट में ऑल पॉइंट्स आते हैं तो उसे डेंस सेट करते हैं. अगर पॉइंट्स में अगर गैप होता है किसी भी तो नो वेयर डेंस होता है. सी दिस. एंड डेंस इटसेल्फ किसे कहते हैं? अगर किसी सेट में उसके लिमिट पॉइंट्स आते हैं तो डेंस इन इटसेल्फ. ये तीन डेफिनेशन अच्छी तरह से याद रखो. तो क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे.
क्लोज्ड की डेफिनेशन कैसे है देखो, क्लोज्ड सेट का डेफिनेशन है इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। तो ये थ्योरम है, सी दिस इज इंपॉर्टेंट थ्योरम, अ सेट यस इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। यहां पे स्टेटमेंट पैटर्न कैसा है देखो, यहां पे अच्छी तरह से देखो, स्टेटमेंट पैटर्न इज हियर इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट पैटर्न। यहां पे जो स्टेटमेंट पैटर्न आपको दिया हुआ है वो इफ एंड ओनली इफ वाला स्टेटमेंट पैटर्न है। तो ये कैसा रहता है, अ सेट इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। यानी कि इसको हम दो पार्ट में प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट होता है नेसेसरी, सेकंड पार्ट होता है सफिशिएंट। नेसेसरी पार्ट यानी कि क्या होता है देखो, हमें क्या प्रूव करना है, ये इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ये कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। सी दिस, ये प्रूव करना है। तो इसको दो पार्ट में प्रूव करना होता है। कभी भी इफ एंड ओनली इफ का स्टेटमेंट पैटर्न होता है तो दो पार्ट में प्रूव करना होता है इसे। फर्स्ट पार्ट में कंडीशन, दिस गिवन कंडीशन कंसिडर करके रिजल्ट प्रूव करना है। दिस इज कॉल्ड एज अ नेसेसरी पार्ट। एंड रिजल्ट कंसिडर करके हमें कंडीशन प्रूव करना होता है, उसे कहते हैं सफिशिएंट पार्ट। sufficient part, okay? So we can write this, a set is closed if and only if its complement is open. Proof, we shall write necessary part. First we shall prove the necessary part, it is also called as a case first. अभी नेसेसरी पार्ट में क्या करना है देखो, वी हैव टू कंसिडर द सेट इज क्लोज्ड एंड वी हैव टू प्रूव इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। यहां पे आपको क्या करना है, सेट क्लोज्ड प्रूव करना है और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ओपन प्रूव करना है। सी दिस, लेट यस बी अ क्लोज्ड सेट। ये देखो, हमें यहां पे क्लोज्ड कंसीडर करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट, यस का कॉम्प्लीमेंट ओपन प्रूव करना है। लेट यस बी अ क्लोज्ड सेट, फुल स्टॉप। वी हैव टू प्रूव द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यस complement of yes means we can say yes का complement, yes का complement, suppose complement of yes is suppose r minus yes we considered as a t is open। ये देखो, ये हमारा स्ट्रक्चर है फर्स्ट पार्ट का। सपोज दैट लेट यस इज अ क्लोज्ड सेट, हमें ये कंसिडर करना है यस इज क्लोज्ड, देन वी हैव टू प्रूव दैट इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कैसा होता है, अदर देन यस इन आर, वी हैव टू शो दैट दैट इज अ ओपन कॉम्प्लीमेंट, हमें ओपन प्रूव करना है। सी दिस, suppose this is a set of real number r, this is a set yes, ये है सेट यस। तो हमें उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट यानी कि वी कंसिडर्ड एज अ टी। तो कॉम्प्लीमेंट में कौन सा पार्ट आता है देखो, तो ये पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट। this part is t equals to r minus s and this is also complement, that is t। ये पार्ट है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसा होता है, कॉम्प्लीमेंट यानी कि उसे छोड़ के,
set of real numbers, S is a subset of real number R. कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर का मतलब क्या होता है? अदर देन यस. ओके, नाउ वी शैल डिस्कस दिस. अभी हमें यहां पे कैलकुलेट करना है. सी दिस. तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमें ओपन दिखाना है, तो यू शैल ड्रॉ दिस. हाँ, लेट x be any point of t, small x be any point of capital T. अभी क्या करना है हमें? ये कॉम्प्लीमेंट ओपन दिखाना है. कॉम्प्लीमेंट ओपन दिखाना है तो क्या करना है उसमें? वी हैव कंसिडर अ पॉइंट x. सपोज दिस इज अ पॉइंट x in T which is other than S. This implies that x belongs to T. Again we shall write this as x does not belongs to S. अगर x T में होता है तो x does not belongs to S होता है. Okay. Also see this. S is closed set, comma, therefore x is not limit point of S. अगर क्लोज्ड सेट होता है तो उसी में लिमिट पॉइंट होते. वी हैव कंसिडर x is outside of S, तो x does not belonging to S. Okay. Limit point of S. This implies that there exists a neighborhood capital N of x such that, how to write? N intersection S which is equals to phi. N intersection S which is equals to phi. Okay. This implies that N is subset of T. This implies that every point of T is an interior point of capital T. This implies that T is open. This implies that T is equals to R minus S is open. ओके, इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज ओपन. यहां पे जो कॉम्प्लीमेंट होता है ओपन. अभी जो सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है, व्हाट इज दैट सेकंड पार्ट? नेसेसरी पार्ट. अभी सफिशिएंट पार्ट. सेकंड पार्ट ऑफ प्रूफ, सफिशिएंट पार्ट. लेट capital S be a set whose complement, what is that? R minus S which is equals to T is open. अभी हम क्या कर रहे हैं? सेकंड पार्ट प्रूव कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट में क्या किए? A set is closed, यानी कि we have considered the set S is closed. We have proved that its complement T is open. How to prove this? Suppose that S is closed, then its complement is R minus S. We have considered as a T is. We have to prove it is open. So x belongs to any point of T.
x बिलोंग्स टू t, इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू s, t में है तो s में नहीं आता है. नाउ शेयर आल्सो s इज क्लोज्ड, अगर क्लोज्ड होता है तो उसमें लिमिट पॉइंट होते हैं. x is not a limit point of S because x is outside of S, exterior point of S. There exists a neighborhood n of x such that n intersection S is phi. यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नेबरहुड हम लेते हैं, ये देखो ये नेबरहुड है n, और उसका इंटरसेक्शन S के साथ empty होता है. So n is subset of S. Then every point of t is interior point of t. Every point of t is the interior point of t. So t is open. We can say that t is equals to r minus s is again open. Now we have to prove the sufficient part, that is second part. Second part में क्या करना है, देखो इसमें complement is open, then we have to prove that given set is closed. Now suppose let S be a set whose complement is R minus S, which is T, is open. We have to prove, अभी क्या प्रूव करना है, the set S is closed प्रूव करना है. Now we have to, that means we have to show that S contains all its limit points. Okay, suppose that is, we have to show S contains its limit points. ये प्रूव करना है. इफ सपोज, अभी कॉन्वर्स से ये प्रूव करना है. सपोज इफ पॉसिबल, अभी उसका लिमिट पॉइंट हम कंसीडर करते हैं p, स्मॉल p बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ S, small p be a limit point of S, but which is not included in, but p is not, see this, p is not in S. अगर p S में नहीं है तो p कहां पे होगा? This implies that p small p belongs to t. S में नहीं है तो t में होता है. But capital T is open, then there exists, therefore there exists a neighborhood of p small p contained in T, and therefore this implies that neighborhood is not in S. Okay, neighborhood is not in S. Therefore this implies that the neighborhood capital N of P, which is no contains in, is not in S, is not in S. Therefore इसका मतलब होता है P is not a limit point of S, and this is a contradiction. This is
contradiction, hence no limit point of S exists no limit point exists in T. This implies that S is closed and hence proved. अरे स्टुडंट्स काय झालं रे, आज मुलांची संख्या कमी आहे, म्हणजे रेंज नाही आहे का, व्हिडिओ ब्रेक झाला का रे, काय प्रॉब्लेम मला सर्वांनी चॅट बॉक्समध्ये सांगायचे. हेन्स प्रूव्ड. परत एकदा मी थेरम प्रूव्ह करून दाखवतो. सिरीज हा थेरम खूप महत्त्वाचा आहे. अ सेट एस इज क्लोज्ड इफ अँड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लिमेंट इज ओपन. सिंपल आहे थेरम, मी फास्ट सांगतो. लेट एस इज क्लोज्ड, वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट इट्स कॉम्प्लिमेंट ऑफ एस. वी हॅव टू प्रूव्ह the complement of S is R minus S, which is equals to T is open. Let small x be any point of T, means x belongs to T. X belongs to T है तो x does not belongs to S. Also S is closed. अगर S closed होता है तो x is not a limit point of S. x हा लिमिट पॉइंट x चा होत नाही, कारण क्लोज असेल तर सर्व लिमिट पॉइंट्स त्यात असतात. Then there exists a neighborhood of x such that n intersection x s is equals to phi. That is, n is a subset of T. That means every point of T is interior point of T. So we can write interior point also. इतना ही लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है फिर से लिखने की. Interior point. So T is open. अगर there exists open neighborhood, open ची definition तुम्हाला माहित आहे. A set is said to be open if every point there exists a open interval or neighborhood. So T is open. This implies that T is equals to R minus S is open. इसका मतलब complement of S is open. इसका ही मतलब होता है complement of S is open. Second part, sufficient part. Let S is said to be, let S be a set whose complement, that is R minus S, which is equals to T is open. कॉम्प्लिमेंट ओपन आहे तर आता एस ला काय दाखवायचे, क्लोज. वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट एस इज क्लोज्ड. आता एस क्लोज प्रूव्ह करायचं म्हणजे दॅट इज वी हॅव टू शो एस कंटेन्स इट्स लिमिट पॉइंट्स. एस कंटेन्स दिस इट्स लिमिट पॉइंट्स. ओके. इफ पॉसिबल P is a limit point of S but P is not in S. कन्सिडरेशन केलं, एस मध्येच दाखवायचं पण कन्सिडर केलं, एस मध्ये येत नाही. दॅट इज, मग एस मध्ये येत नाही तर कशात येतो, पी. पी बिलोंग्स टू टी बट टी इज ओपन. अगर ओपन है तो उसके यहाँ पे नेबरहुड होता है. देन देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पी कंटेन इन एस. नेबरहुड इज नॉट इन एस. सो नेबरहुड n of P is not in S. So P is not a limit point of S. and which is a contradiction, कारण आपण कन्सिडर काय केलं, P is a limit point of S. P हा S चा लिमिट पॉइंट आहे पण S मध्ये नाही सांगितलं होतं. मग जर P आउटसाइड असेल तर P S चा लिमिट पॉइंट होत नाही. दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. हेन्स नो लिमिट पॉइंट ऑफ X एक्झिस्ट इन T. देअरफॉर S इज क्लोज्ड अँड हेन्स प्रूव्ड. अशा पद्धतीनं हा थेरम इथं संपतो. जर व्हिडिओ मी ब्रेक झाला असेल तर मी याला रिवाइज करून तुम्हाला परत एकदा रिप्लेस करतो. तर या ठिकाणी थांबू. नमस्कार, गुड बाय.